फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज का हमारा टॉपिक है नी जॉइंट। बट नी जॉइंट को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। आवर टुडेज टॉपिक इज़ नी जॉइंट। नी जॉइंट को हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन। सेकेंड, लिगामेंट्स। थर्ड, बर्से अराउंड द नी। फोर्थ, रिलेशंस। फिफ्थ, ब्लड सप्लाई। सिक्स्थ, nerve supply. Seventh, movement. And eighth is applied anatomy of knee joint. First point of knee joint is its introduction. It is the largest and most complex joint of the body. ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे कॉम्प्लेक्स जॉइंट होता है. इट इज़ द फ्यूज़न ऑफ 3 जॉइंट्स. ये 3 जॉइंट के फ्यूज़न से बनता है. फर्स्ट, लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट. सेकेंड, मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट. एंड थर्ड इज फीमोरोपटेलर जॉइंट. टाइप्स, इट इज़ ए कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट. ये कंपाउंड साइनोवियल जॉइंट होता है विच हैज़ 2 कॉन्डाइलर जॉइंट्स एंड 1 सैडल जॉइंट. इसमें 2 कॉन्डाइलर जॉइंट होते हैं और 1 सैडल जॉइंट होता है. 2 कॉन्डाइलर जॉइंट्स हैं लेटरल फीमोरोटिबियल एंड मीडियल फीमोरोटिबियल. लेटरल फीमोरोटिबियल एंड मीडियल फीमोरोटिबियल 2 कॉन्डाइलर जॉइंट्स होते हैं. एंड फीमोरोपटेलर जॉइंट वो सैडल जॉइंट होता है. So it is formed by the fusion of 2 condylar joints and 1 saddle joint. Next is articular surfaces. इसकी articular surfaces है it is formed by condyles of the femur, condyles of the tibia and patella. ये femur के condyles and tibia के condyles and patella के fusion से बनता है. So this is the introduction of knee joint which includes its types and articular surfaces. This is the diagram showing articular surfaces of knee joint. Knee joint is a very complex joint. ये बहुत complex joint होता है क्योंकि 3 joint के fusion से बनता है. First is medial femorotibial joint. This is a medial femorotibial joint जो कि medial condyle of femur and medial condyle of tibia के junction से बनता है. Second is lateral femorotibial joint. This is the lateral femorotibial joint जो कि lateral condyle of femur and lateral condyle of tibia से बनता है. एंड थर्ड वन इज़ फीमोरोपटेलर जॉइंट जो कि पटेला एंड फीमर के बीच में प्रेजेंट होता है. सो दिस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 जॉइंट: मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट, लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट एंड फीमोरोपटेलर जॉइंट. नी जॉइंट में 2 जॉइंट कॉन्डाइलर जॉइंट होते हैं एंड 1 जॉइंट सैडल जॉइंट होता है. मीडियल फीमोरोटिबियल जॉइंट एंड लेटरल फीमोरोटिबियल जॉइंट इज अ कॉन्डाइलर जॉइंट. ये 2 कॉन्डाइलर जॉइंट्स होते हैं and femoropatellar joint is 1 saddle joint. So knee joint is the combination of 3 joints which has 2 condylar joint and 1 saddle joint. Second point of knee joint is its ligaments. There are 10 ligaments in knee joints. First, fibrous capsule or articular capsule. Second, ligamentum patelli. Third, tibial collateral ligament. Fourth, fibular collateral ligament. Fifth, oblique popliteal ligament. Sixth, arcuate popliteal ligament. Seventh, cruciate ligament. Eighth is menisci or semilunar cartilages. Ninth is transverse ligament. And 10th, synovial membrane. Now we see the description of these ligaments. Second point of knee joint is its ligaments. First ligament is fibrous or articular capsule. It is very thin and is deficient anteriorly. ये बहुत thin होता है और anteriorly ये deficient और absent होता है. फीमोरल अटैचमेंट, इट इज़ डिफिशियंट एंटीरियरली. ये एंटीरियरली डिफिशियंट होता है. इट इज़ अटैच टू इंटरकॉन्डाइलर लाइन पोस्टीरियरली, बट पोस्टीरियरली ये इंटरकॉन्डाइलर लाइन ऑफ फीमर पर अटैच होता है. टीबियल अटैचमेंट, इट इज़ डिफिशियंट एंटीरियरली. ये भी एंटीरियरली डिफिशियंट होता है. पोस्टीरियरली इट इज़ अटैच्ड टू द इंटरकॉन्डाइलर रिज. पोस्टीरियरली ये इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ टीबिया पे अटैच होता है. कोरोनरी लिगामेंट, the part of the capsule between the menisci and tibia is sometimes called the coronary ligament. Fibrous capsule का वो part जो कि menisci और tibia के बीच में होता है, sometimes it is called as coronary ligament. Second ligament is ligamentum patelli. It is 3 inches long and 1 inch broad. ये 3 इंच लंबा होता है और 1 इंच चौड़ा होता है. It is attached about to the rough posterior surface of apex of patella. ये superiorly एपेक्स ऑफ पटेला के रफ पोस्टीरियर सरफेस पर अटैच होता है. इट इज़ अटैच्ड बिलो टू स्मूथ अपर पार्ट ऑफ टिबियल ट्यूब्रोसिटी. ये इंफीरियरली
टिबियल ट्यूबरोसिटी के स्मूथ अपर पार्ट पे अटैच होता है। थर्ड लिगामेंट इज टिबियल कोलेटरल लिगामेंट और इट इज़ नोन एज मीडियल लिगामेंट। इट इज़ अ लॉन्ग बैंड, ये लॉन्ग बैंड के शेप का होता है। सुपीरियरली इट इज़ अटैच टू द मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर, ये सुपीरियरली मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर पर अटैच होता है। इन्फीरियरली इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, इन्फीरियरली या टिबिया के लेवल पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पार्ट्स। फर्स्ट इज एंटीरियर पार्ट, इट इज़ 4 इंचेस लॉन्ग एंड हाफ एन इंच ब्रॉड, ये 4 इंचेस लॉन्ग होता है एंड हाफ एन इंच ब्रॉड होता है। इट इज़ अटैच्ड बिलो टू द मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मीडियल सर्फेस ऑफ शेफ्ट ऑफ टिबिया, ये इन्फीरियरली टिबिया की मीडियल बॉर्डर एंड मीडियल सरफेस के पोस्टीरियर पार्ट पर अटैच होता है। सेकेंड इज पोस्टीरियर पार्ट, इट इज़ शॉर्ट, ये शॉर्ट होता है एंड ब्लेंड विद द कैप्सूल, एंड ये नी जॉइंट के कैप्सूल से ब्लेंड हो जाता है। एंड मीडियल मेनिस्कस, इट ऑल्सो ब्लेंड विद द मीडियल मेनिस्कस ऑफ नी जॉइंट। इट इज़ अटैच अबाउट टू द मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर, ये सुपीरियरली मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होता है एंड बिलो टू द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया एंड इन्फीरियरली मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया पे अटैच होता है। फोर्थ लिगामेंट इज फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट, इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कोर्ड लाइक, ये स्ट्रॉन्ग होता है एंड कोर्ड लाइक होता है। इट इज़ 2 इंचेस लॉन्ग, ये 2 इंच लंबा होता है। सुपीरियरली इट इज़ अटैच टू द लेटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर, ये सुपीरियरली लेटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होता है एंड इन्फीरियरली इट इज़ अटैच टू द हेड ऑफ द फिब्यूला एंड इन्फीरियरली ये हेड ऑफ फिब्यूला से अटैच होता है। फिफ्थ लिगामेंट इज ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, दिस इज एन एक्सपेंशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल का एक एक्सपेंशन होता है। इट रन्स अपवर्ड एंड लेटरली, इसके फाइबर्स अपवर्ड और लेटरली जाते हैं। इट इज़ अटैच्ड टू द इंटरकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, इसके फाइबर्स अपवर्ड जाते हैं और इंटरकॉन्डाइलर लाइन एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पर अटैच हो जाते हैं। सिक्स्थ लिगामेंट इज आर्क्यूएट पॉप्लिटियल लिगामेंट, इट इज़ अ पोस्टीरियर एक्सपेंशन फ्रॉम शॉर्ट लेटरल लिगामेंट, ये शॉर्ट लेटरल लिगामेंट से पोस्टीरियर एक्सपेंशन के फॉर्म में निकला होता है। इट एक्सटेंड बैकवर्ड फ्रॉम द हेड ऑफ द फिब्यूला, ये हेड ऑफ फिब्यूला से निकलता है एंड इसके फाइबर्स बैकवर्ड जाते हैं। इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, इसके फाइबर्स टिबिया की इंटरकॉन्डाइलर एरिया के पोस्टीरियर बॉर्डर पर अटैच होते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ नी जॉइंट शोइंग इट्स डिफरेंट लिगामेंट्स। This is the lateral condyle, the medial condyle, and this is the medial epicondyle of femur. This is the tibia and this is fibula. This is fibular collateral ligament. ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड थिक बैंड लाइक होता है। सुपीरियरली ये लेटरल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होता है एंड इन्फीरियरली हेड ऑफ फिब्यूला से अटैच होता है। सो दिस इज़ द फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज़ द कैप्सुलर लिगामेंट, दिस इज़ द कैप्सुलर लिगामेंट and this is also the capsular ligament. This is medial meniscus and this is the lateral meniscus of knee joint. This is tibial collateral ligament. Tibial collateral ligament superiorly medial epicondyle of femur से अटैच होता है and inferiorly इसके 2 पार्ट होते हैं. This is the superficial part and this is deep part. This is the deep part. इसका superficial part 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, superiorly मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होता है एंड इन्फीरियरली शेफ्ट ऑफ टिबिया से अटैच होता है। इसका डीप पार्ट सुपीरियरली मीडियल इपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से अटैच होता है एंड इन्फीरियरली ये कैप्सूल एंड मीडियल मेनिस्कस से ब्लेंड हो जाता है एंड मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया से अटैच होता है। सो दिस आर द लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट्स। सेवंथ पॉइंट इज क्रूशिएट लिगामेंट्स, दिस आर वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड्स, ये बहुत थिक होते हैं और स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड्स होते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप, ये 2 तरह के होते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। फर्स्ट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, इट बिगिंस फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरकॉन्डाइलर एरिया ऑफ द टिबिया, ये टिबिया के इंटरकॉन्डाइलर एरिया के इंटीरियर पार्ट से अराइज होते हैं। इट रन्स अपवर्ड बैकवर्ड एंड लेटरली, इसके फाइबर्स अपवर्ड बैकवर्ड और लेटरली जाते हैं। It is attached to the posterior part of medial surface of lateral condyle of the femur, ये lateral condyle of femur की medial surface के posterior part से attach होते हैं। Second point is posterior cruciate ligament, it begins from the posterior part of intercondylar area of the tibia, ये tibia के intercondylar area के posterior part से arise होता है
इट रन्स अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली। इसके फाइबर अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली जाते हैं। इट इज़ अटैच टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर। इसके फाइबर्स मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर की लेटरल सरफेस के इंटीरियर पार्ट से अटैच होते हैं। दिस इज द सैजिटल सेक्शन ऑफ नी जॉइंट शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, posterior cruciate ligament and ligamentum patelli. Now we see their description. First is capsular ligament. Capsular ligament superiorly intercondylar line of femur से attach होता है and inferiorly intercondylar ridge of the tibia से attach होता है. This is the capsular ligament. ये anteriorly deficient होता है. This is the anterior cruciate ligament. Anterior cruciate ligament anteriorly टीबिया के इंटरकॉन्डाइलर रिज से अटैच होता है। इसके फाइबर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, बैकवर्ड एंड लेटरली होता है एंड इसके फाइबर्स लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर पे अटैच होते हैं। सो इट इज़ अटैच्ड इंफीरियरली टू द इंटरकॉन्डाइलर लाइन ऑफ द टीबिया एंड सुपीरियरली टू द लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर। दिस इज द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पोस्टीरियरली इंटरकॉन्डाइलर लाइन ऑफ द टीबिया से अटैच होता है एंड इसके फाइबर्स का डायरेक्शन अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली होता है। इसके फाइबर्स अपवर्ड जाते हैं, फॉरवर्ड और मीडियली जाते हैं एंड इट इज़ अटैच टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर और ये मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ द फीमर पे अटैच होते हैं। सो दिस इज़ द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दिस इज़ द लिगामेंटम पटेली। लिगामेंटम पटेली क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस मसल का एक पार्ट होता है। ये 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सुपीरियरली ये एपेक्स ऑफ द पटेला से अटैच होता है एंड इन्फीरियरली टिबियल ट्यूबरोसिटी से अटैच होता है। सो दिस आर द 4 लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट: कैप्सुलर लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड लिगामेंटम पटेली। 8th ligament is menisci or semilunar cartilages. They are 2 fibrocartilaginous discs and shaped like a crescent. ये 2 fibrocartilaginous disc होती हैं एंड क्रिसेंट शेप की होती हैं। इट हैज़ 2 एंड्स, इसके 2 एंड होते हैं विच आर अटैच्ड टू द टीबिया। इसके दोनों एंड्स टीबिया से अटैच होते हैं। 2 बॉर्डर्स, इसकी 2 बॉर्डर होती है, आउटर बॉर्डर एंड इनर बॉर्डर। इसकी आउटर बॉर्डर थिक एंड कॉन्वेक्स होती है एंड इनर बॉर्डर थिन, कॉन्केव एंड फ्री होती है। इसकी 2 सर्फेसेस होती हैं, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। इसकी अपर सरफेस कॉन्केव होती है एंड लोअर सरफेस फ्लैट होती है। देयर आर 2 मेनिस्कस इन नी जॉइंट। हर नी जॉइंट में 2 मेनिस्कस होते हैं, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस इट इज़ नियरली सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कुलर शेप का होता है। इट इज़ वाइडर बिहाइंड देन इन फ्रंट, ये पीछे की तरफ थोड़ा चौड़ा होता है एंड आगे से नैरो होता है। लेटरल मेनिस्कस इट इज़ नियरली सर्कुलर, ये सर्कुलर शेप का होता है। इट्स पोस्टीरियर एंड इज़ अटैच टू फीमर, इसका पोस्टीरियर एंड फीमर से अटैच होता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेनिस्काई और सेमिल्यूनर कार्टिलेजेस। दिस इज़ द एंटीरियर व्यू एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर व्यू। नी जॉइंट में 2 मेनिस्कस होते हैं, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। हर मेनिस्कस के 2 एंड होते हैं। दिस इज़ द एंटीरियर एंड ऑफ मीडियल मेनिस्कस एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर एंड। This is the anterior end of lateral meniscus and this is the posterior end. Let's see. This is the anterior horn and this is the posterior horn of medial meniscus and this is the anterior horn and this is the posterior horn of lateral meniscus. Medial meniscus semicircular in shape होता है, ये पीछे से चौड़ा होता है एंड anteriorly narrow होता है। Lateral meniscus circular in shape होता है, this is circular in shape and posteriorly ये फीमर से अटैच होता है। दिस इज़ द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ मेनिस्कस ऑफ नी जॉइंट। 9th ligament is transverse ligament. It connects the anterior end of medial and lateral menisci. ये medial and lateral menisci के anterior end को connect करती है। 10th is synovial membrane. This membrane lines the capsule. ये membrane capsule को line करती है। It is absent anteriorly from the patella. ये membrane anteriorly patella के level पर absent होती है। It is prolonged upwards 5 centimeter above the patella. ये patella से ऊपर 5 centimeter above prolong करती है
Below the patella, it covers the deep surface of infrapatellar pad of fat. पटेला के नीचे ये इंफ्रापटेलर पेड ऑफ फैट की डीप सरफेस को कवर करती है. सो दिस आर द लिगामेंट्स ऑफ नी जॉइंट. थर्ड पॉइंट ऑफ नी जॉइंट इज बर्से अराउंड द नी. दे आर सिचुएटेड एज फॉलोज. फर्स्ट इज एंटीरियर. वो बर्से जो कि नी जॉइंट के एंटीरियरली सिचुएटेड होते हैं. दे आर सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा, सबक्यूटेनियस इंफ्रापटेलर बर्सा, डीप इंफ्रापटेलर बर्सा एंड सुप्रापटेलर बर्सा. सेकंड इज लेटरल. वो बर्से जो कि नी जॉइंट के लेटरली सिचुएटेड होते हैं वो हैं बर्सा डीप टू लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस. ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के लेटरल हेड के डीप में सिचुएटेड होता है. बर्सा बिटवीन फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फीमोरिस. ये बर्सा फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट एंड बाइसेप्स फीमोरिस के बीच में सिचुएटेड होता है. बर्सा बिटवीन फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट एंड टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस. ये बर्सा फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट एंड पॉप्लिटियस मसल के टेंडन के बीच में सिचुएटेड होता है. एंड अ बर्सा बिटवीन टेंडन ऑफ पॉप्लिटियस एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया. ये बर्सा पॉप्लिटियस मसल के टेंडन एंड लेटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया के बीच में सिचुएटेड होता है. थर्ड इज मीडियल. दिस आर दोज बर्से विच आर सिचुएटेड मीडियल टू द नी जॉइंट. ये नी जॉइंट के मीडियली सिचुएटेड होते हैं. बर्सा डीप टू मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस. ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल के मीडियल हेड के डीप में सिचुएटेड होता है. सेकेंड इज एंसेराइन बर्सा. बर्सा डीप टू टीबियल कोलेटरल लिगामेंट. ये बर्सा टीबियल कोलेटरल लिगामेंट के डीप में सिचुएटेड होता है. बर्सा डीप टू सेमी मेम्ब्रेनोसस. ये सेमी मेम्ब्रेनोसस मसल के डीप में सिचुएटेड होता है. बर्सा बिटवीन टेंडन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस. एंड एक बर्सा सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस मसल के डीप में या बीच में सिचुएटेड होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज द रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट. फर्स्ट एंटीरियरली. नी जॉइंट के एंटीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. एंटीरियर बर्से, लिगामेंटम पटेली एंड पटेलर प्लेक्सस ऑफ नर्व्स. सेकेंड इज पोस्टीरियरली. नी जॉइंट के पोस्टीरियरली फॉलोइंग स्ट्रक्चर सिचुएटेड होते हैं. पॉप्लिटियल वेसल्स, टीबियल नर्व, मिडल जेनिकुलर वेसल्स, मिडल जेनिकुलर नर्व्स, प्लांटेरिस मसल, कॉमन पेरोनियल नर्व्स, गैस्ट्रोक्नीमियस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ग्रेसिलिस एंड पॉप्लिटियस मसल. These structures are situated posteriorly to the knee joint. Third is medially. Knee joint के medially following structure situated होते हैं. Sartorius, gracilis, semitendinosus, great saphenous nerve, great saphenous vessels, semimembranosus, inferior medial genicular vessels and nerves. These structures are situated medially to the knee joint. Fourth point is laterally. The structures which is situated laterally to the knee joint are biceps femoris, tendon of popliteus, inferior lateral genicular vessels and nerves. So these are the relations of knee joint. This is the diagram showing relations of knee joint. This is the anterior part, this is medial part and this is the lateral part of knee joint. इसके anterior relation में है ligamentum patelli, this is the ligamentum patelli. इसके पोस्टीरियर रिलेशन में है दिस इज़ द टीबियल नर्व, दिस इज टीबियल नर्व एंड दिस आर द पॉप्लिटियल वेसल्स. दिस आर द पोस्टीरियर रिलेशन. इसके पोस्टीरियर मीडियल साइड में मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड ग्रेसिलिस मसल आती है. दिस आर द पोस्टीरियर मीडियल रिलेशन. इसके पोस्टीरियर लैटरल रिलेशन में लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस, प्लांटेरिस मसल, common peroneal nerve. These are the posterolateral relations. And इसके lateral relation में this is the biceps femoris muscle and tendon of popliteus. These are the lateral relation. And इसके medial relation में semitendinosus muscle, semimembranosus muscle, gracilis and popliteus muscle. So these are the medial relation and these are the relations of knee joint. Fifth point of knee joint is its blood supply. Knee joint is supplied by anastomosis around it. Knee joint को उसके आसपास जो anastomosis होती है वो सप्लाई करती है, which is formed by, ये anastomosis following arteries से फॉर्म होता है. 5 genicular branches of the popliteal artery, descending genicular branch of femoral artery,
descending branch of lateral circumflex femoral artery, 2 recurrent branches of the anterior tibial artery and circumflex fibular branch of posterior tibial arteries। ये सारी आर्टरीज एनास्टोमोसिस बनाती हैं जो कि नी जॉइंट को ब्लड सप्लाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स नर्व सप्लाई। नी जॉइंट को फॉलोइंग नर्व्स सप्लाई करती है: femoral nerve, sciatic nerve and obturator nerve. These are the nerve supply of knee joint. Seventh point is movement of knee joints. Following movements occur in knee joint. Knee joint में following movements होते हैं: flexion, extension, medial rotation and lateral rotation. Now we see the muscles responsible for these movements. First is flexion. Flexion के लिए जो principal muscle responsibles हैं वो हैं biceps femoris, semitendinosus and semimembranosus. Accessory muscles जो कि flexion produce करवाती हैं वो है gracilis, sartorius, popliteus and gastrocnemius. Second is extension. Principal muscles जो कि extension produce करवाती है वो है quadriceps femoris and accessory muscles है tensor fasciae lata. Third movement is medial rotation. मीडियल रोटेशन के लिए जो प्रिंसिपल मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो हैं पॉप्लिटियस, सेमी मेम्ब्रेनोसस एंड सेमी टेंडिनोसस एंड एसेसरी मसल्स हैं सर्टोरियस एंड ग्रेसिलिस। फोर्थ मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट इज लेटरल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन के लिए जो प्रिंसिपल मसल रिस्पॉन्सिबल है वो है बाइसेप्स फीमोरिस। सो दिस आर द मूवमेंट्स ऑफ नी जॉइंट एंड द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट्स। लास्ट पॉइंट ऑफ नी जॉइंट इज इट्स अप्लाइड एनाटॉमी। The legs may be abnormally abducted, which is known as genu valgum or knock knee. Legs abnormally abducted हो सकते हैं जिसे हम genu valgum और knock knee के नाम से जानते हैं। Second point is the legs may be abnormally adducted, which is known as genu varum or bow knee. Sometimes legs abnormally adducted हो जाते हैं जिसके लिए हम term use करते हैं genu varum और bow knee. This both conditions may be caused by rickets, बेड पोस्चर और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी। जेनु वैरम एंड जेनु वल्गम दोनों कंडीशन रिकेट्स में या बेड पोस्चर की वजह से हो सकती है और कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। थर्ड पॉइंट इज नी जॉइंट में बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग डिजीजेस: ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड अदर इन्फेक्शन। नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस या दूसरे इन्फेक्शन की वजह से भी अफेक्टेड हो सकता है। सो द फ्लूइड कलेक्ट्स इन द जॉइंट कैविटी और इसकी वजह से जॉइंट कैविटी में फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। फोर्थ इज इंजुरी टू द नी जॉइंट में ऑल्सो ओकर बाय ट्विस्टिंग फोर्सेज। ट्विस्टिंग फोर्सेज की वजह से नी जॉइंट इंज्योर भी हो सकता है। सो दिस इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ नी जॉइंट। थैंक यू so much guys for watching my video. If you like my video, please do subscribe my channel and press the bell icon.